to you, Hamad. What do you mean by enhanced recovery after surgery? Yes, Hamad, did you listen the question? What do you mean by enhanced recovery after surgery? So enhanced recovery by after surgery. No sir, इसका idea नहीं. Okay. Hello. I will just give you a hint that like if you want to improve the patient outcome, okay, Yes, if you improve the patient outcome following any surgery, like for example orthopedic surgery, gastrointestinal surgery. So is there anything you can do to improve the patient outcome? First of all, we would like to after surgery we would like to see patient pain-free. Like a patient should be pain-free for early recovery. Early mobilization. Okay. So what by giving by making the patient pain-free and by making patient early immobilization, by doing early immobilization, what will be the result that will improve the outcome? So patient would be early recovery उसकी mean के जल्दी हो रही है Okay, so is there any role of NPO, that how much time you keep the patient NPO, or how much? Patient NPO depends on the type of surgery, type of anesthesia, like what Is we there have any given. different NPO guidelines for different surgery? NPO guidelines. These NPO guidelines be different, only different. Like if any GI surgery, intestinal you are not surgery, getting my point. I'm asking about NPO, pre-operative NPO. Oh, okay. Pre-op भी sir NPO for different, like peds में different NPO होगा, and in what will be general population. So in peds there will 2 hours for clear liquids, 4 hours for mother feed, or 6 hours for solid food, sir. And what about adult patient? Would you can't the adult patient take 2 hours before surgery clear fluid, small amount? No sir, for adults it could be 4 have you heard of 4 hours. Have you heard of patient receiving any dextrose solution? Okay. What about what about choosing anesthetic or surgical technique? Can this affect surgical outcome? Ji sir, if we have given general anesthesia, patient would be for after extubation, patient can move his arms, legs, and instantly. But if we give spinal anesthesia, patient will surgery ended in 30 or 40 minutes. Spinal effect will be there after surgery, or if there is okay. So what about surgical drains and putting enema or not? Does it affect? सर आपने drains का कहा है? Yes. Drains or lines passing NG tube or yes, preparing enema. it will affect patient
recovery, like it will increase the time of recovery. If there is a drain or NG or CVC line, patient will definitely have pain of these uh, instruments we use. So post-op, it will decrease the recovery after surgery. Okay. So like if you want to check it out, whether if I ask you which is better for enhanced recovery after surgery, general anesthesia or regional 5 anesthesia? minutes. Okay, just last question. How can you rate regional anesthesia versus general anesthesia for um, like this concept of this enhanced recovery after surgery? So I think regional anesthesia is better. Okay, if you have given spinal, so will that enhance the recovery, or if you are giving short anesthesia with low hangover and low metabolites, which will be better? Say, I think GA with low. Okay, thank you. Zishan, just correct this answer. If you can just explain, we will just stop the same question which I asked to him. Just try to answer quickly. Sir. So, sir, enhanced recovery after surgery was basically this program was started for colorectal surgery, but seeing the benefits of this program, it was extended to all approximately all other surgeries. This program includes some pre-operative, intraoperative, and post-operative things, which when employed will improve the enhance the recovery of the patient. It will decrease the morbidity and mortality of the patient. It will decrease the financial burden on the patient and on the system. So there are multi effects which can be achieved. So among this program, So first what of are all, there is components? some pre-operative. What are Yes, sir, components the which you component. like to do? There are some pre-operative components like the gut If preparation you should be just for first instance, of if all, you sir. take the example of just GIT surgery. So I will be what you like to explaining. do in the perioperative period? Just if you can just tell. Yes, sir. So, sir, first of all, the patient should be involved in the decision-making process. He should be explained everything, and the patient should be involved in the decision-making process. He should know what is going to happen, and he should know the steps, and he should be consenting to it. Then, in the preoperative, the NPO time should be minimized. The clear fluids should be allowed up to 2 hours before surgery with carbohydrate drinks, and the other solid for solids it's the same 6 hours. Then gut preparation should be avoided. There should not be any nasogastric tubes or drains put in the patient, and the surgery should be planned with the surgeon. Ideally, a minimally invasive surgery would be the best choice for ERAS, and patient should be optimized his comorbids or any kind of condition that he is having. He should be optimized so that on the day of surgery there's no optimization needed before that. Then if we come to What intraoperative, about what's role of thromboprophylaxis? What's role of giving prophylaxis are in multimodal post-op, I think. anesthesia? Yes, sir. These are all in intra and post-op things. Okay, So for the surgery process, the patient should be called on the day of surgery to the hospital, and not before that. The patient should, ideally, the minimally invasive surgery should be planned. The surgery should be minimal time of the surgery. The surgery should not be very prolonged. Fluid therapy should be goal directed and not excessive, or not less fluids should be given. Then multimodal analgesia should be employed, which will include from simple analgesics and strong opioids up to regional anesthesia, which can include local anesthetic, epidural, or according to the surgery. And then intraoperative, yes, drains and Foley's catheter, drains, NGTs, what this should be avoided. other surgeries than GI surgeries usually employed these days? Sir, many surgeries like orthopedic surgeries, like gynecological surgeries, like general surgery, other procedures, all the surgeries can have ERAS program in them these days. Okay, so just
You have Then a when we better come to answer. post-operative time, Yes, then post-operative. okay, then the choice of anesthesia, ideally a regional with local anesthetic should be employed if the surgery permits, like regional block. If that is not possible, then according to the surgery, such a technique should be used that post-operative nausea vomiting is avoided, and measures should be taken to apprehend this post-operative nausea vomiting. Okay, so you have And almost covered everything. You said twice that I will call the patient before and I will admit. This is useless. Okay, you just say that we will be informing the patient, we will take the consent, and multidisciplinary team. We are just making a plan to avoid prolonged stay. We are trying to avoid medication which have prolonged metabolism. We are avoiding medication which has too much hangover. ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपने सही बताई हैं। जस्ट थोड़ा सा इसको आप तरतीब दे दें। हमाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए हर सूरत। ये मैंने कई दफा डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन वो डायरेक्टली ना भी पूछें या इनडायरेक्टली आपकी पेशेंट केयर के अंदर ये चीज आपके आंसर को बहुत इंप्रूव करेगी, इवन इफ दे आर आस्किंग एनी अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इराज के बातों को नाम ना लिए बगैर आप बोल देंगे ये सारी बातें ना, तो ये आपकी अच्छी केयर में शामिल है। ठीक है, हर अच्छी केयर जो है ना वो इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टू छोटी सी बात कर दूं। यस यस। जिन लोगों ने अभी तक इराज नहीं पढ़ा और डिटेल में नहीं पढ़ सकते, ऑक्सफोर्ड में जनरल सर्जरी के फर्स्ट पेज पर कोलोरेक्टल सर्जरी में ये एक पेज पे लिखा हुआ है। दैट इज मोर देन इनफ टू नो एट दिस टाइम, अगर आप लोग मिनिमम तक पढ़ना चाहें तो। वन पेजर है वो। एनी यू नो, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, इट मैटर्स कि आपको क्या समझ आता है। ठीक है, तो सेम थिंग यू कैन फाइंड इन एनी बुक, सेम थिंग यू कैन, लाइक ही इज टेलिंग यू ऑक्सफोर्ड, यू कैन से अबाउट इट, बट लाइक यही चीजें हैं, ये जो आपको बीच में स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनमें से आप 5-6 बातें भी याद रह जाते हैं तो आपका आंसर इज एनफ। ठीक है, तो ये बेसिकली ये है इसका कॉन्सेप्ट। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा फर्क, अगर ऑर्थोपेडिक के रेफरेंस से पूछेंगे तो आपने कहना है कि भाई अगर हम कोई ब्लॉक दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी मेडिकेशन यूज करेंगे जो शॉर्ट एक्टिंग हो, लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरप्रोकेन विल बी बेटर। अगर आप दे रहे हैं कोई पोस्ट ऑपरेटिव के लिए ब्लॉक दे रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको, नी सर्जरी के लिए ये यूज हो रहा है काफी, तो आप उसको सेफनेस नर्व ब्लॉक देंगे, एडक्टर कनाल ब्लॉक देंगे, आप नहीं उसको फेमरल नर्व ब्लॉक नहीं देंगे ताकि उसको मोटर स्पेयरिंग हो जाए। ठीक है, ये चंद बातें हैं जो आपको इसमें रखनी है, बाकी वही सारी बातें, बहुत ज्यादा एनपीओ नहीं रखना है। स्ट्रेस रिस्पांस, वजह मैंने जो आपसे पूछ रहा था ना, आपने वजह नहीं बोली उसे, स्ट्रेस रिस्पांस ब्लंट होता है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड एनपीओ होता है तो उससे स्ट्रेस रिस्पांस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अंदर आप प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया का नाम भी ले लें, ये आपने मिस किया है जीशान। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नॉजिया वॉमिटिंग भी सर प्रोलॉन्ग एनपीओ से ज्यादा होता है। हाँ जी, ये जो बातें हैं ना, ये तकरीबन यही सारी बातें लिखी हुई हैं। बोरल प्रिपरेशन नहीं करनी, आपने बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग एनपीओ नहीं करना, और कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड, क्लियर फ्लूइड आपने बताना है। ठीक है, क्लियर फोलीज ना डालें, और ये देख रहे हैं ये ओरल एनाल्जेसिक पे कंट्रोल हो, और दैट्स इट। तो ये, और एक्चुअली ये नहीं है कि ये उसी दिन आपने डिस्चार्ज करना है। इनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह बुला के शाम को डिस्चार्ज करके वापस भेज दें, नो, नॉट नेसेसरीली। आपने पेशेंट का आउटकम बनाना है, एम्बुलेट करना है। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी रखना है तो आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट एम्बुलेट हो जाए। ठीक है, अगर पेशेंट ने फिजियोथेरेपी करवाने के लिए और हॉस्पिटल के अंदर स्टे भी करना है तो भी आप कोशिश करेंगे कि पेशेंट एम्बुलेट होगा, पेशेंट पेन फ्री होगा, तो पेशेंट की फिजियोथेरेपी भी ज्यादा आसानी से होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सहरिश। Yes, sir. What is working principle of pulse oximetry? Sir, basically, working principle of pulse oximetry is plethysmophotospectrometry, and it depends on the law that is Baird and Lambert. Spectrometry. I am hearing this word for the first time. Plethysmography. Plethysmography. Sorry, sir. Plethysmography. Okay. Anything else? Plethysmography and the working principle is a Baird-Lambert law. No, Baird-Lambert law. Okay, how will you apply Baird-Lambert law? Sir, basically Baird law and Lambert law is like that. The Lambert law states
कि जैसे when a light fall on some substance, तो it transmitted and decreased the distance. और Lambert laws में सर हमने ये पढ़ा था कि basically जो clear substance है जो वो light absorb करता है. इसमें basically तो absorption इससे पल्स ऑक्सीमेट्री का क्या इफेक्ट है? पल्स ऑक्सीमेट्री कैसे कैलकुलेट हो रही है? सर बेसिकली ये होता है कि इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं 90 और 60 की रेंज में, जो वो जब क्रॉस करती हैं कैपिलरी बेड को तो वो डिटेक्ट करती हैं डिस्पर्जन को, उसकी वजह से जो है हमारे पास। तो इसको आप बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ को उसको किस तरह इंटरवीन करेंगे? Okay, what are limitations of pulse oximetry which you use? Limitations. In which circumstances pulse oximetry will not be very accurate? Sir, basically if somebody is applying the certain color of nail polish, and other is that applying henna on her hand, and anemia, and what will happen? What will happen in anemia? Yes. What will happen in anemia in saturation? Yes, sir. In anemia, there is also an inadequate signal that lead to limitation of the pulse oximetry. No, it's not like that. Pulse oximetry is checking the saturation. Okay, so it has nothing to do with anemia. Okay. It is to relate to, if you are talking, if you are trying to say hemoglobinopathy. Yes, hemoglobinopathy is something as methemoglobinemia, cyanhemoglobinemia. Okay. So in that unreliable. Okay, is there any improvement in pulse oximetry which can make it a better device? Improvement. Okay, what is working principle of Untitled CO2? Sir, Untitled CO2 working principle is basically working principle. What are different types of Untitled CO2? Sir, midstream and the other was side stream. Okay, what is difference? What information you can get from Untitled CO2? Okay. What is working principle of intra-arterial blood pressure monitoring? How do we get this intra-arterial blood pressure monitor waveform? Don't remember, sir. Okay, what information you can get from ECG intraoperatively? Sir, electrocardiography is basically a graphical presentation of cardiac impulses that generate in the mechanical form or graphical form in the monitor. Okay. And any disabilities that occur inside the heart will be depicted like in different changes like atrial fibrillation. Okay, what about ischemia? How can you label that this is patient is ischemic in some specific lead? What is the most intraoperatively, which lead is most sensitive to detect ischemia? The lead 2, basically. ST elevation in lead 2. Is there any different modifications of chest placement of leads which we do?
No idea, sir. Okay. What is the role of echocardiography in intraoperative period? So echocardiography can be of different type. Nowadays we are using like TEE, and in that we can look the cardiac output, wall motion abnormality. You cannot and get this information by by transthoracic. yes, sir, we can. So you are telling that it is only for from T. No, sir. We usually use TEE. Okay. Okay. You see, Sahrish, this question was, this question was asked 15 years ago. When I, not 15 Yes, years, sir. 14 years ago, rather, those are now, 2009, 13, almost 13 years ago. This question was asked in talks. Yes, I added Okay. this echo and ECG because you were not able to answer the other parts. But if some anesthetist does not know about pulse oximetry and tidal CO2, I'm afraid this is a very basic question. Okay, you should be knowing about it. Yes, And sir. the question, you don't need to you are telling about Beer and Lambert law. You are not able to tell even one word how it is interpreted. It is oximetry and plethysmography. The working, someone asks you, there is combination of oximetry and plethysmography. Oximetry is to see what sort of hemoglobin is there, oxygenated or deoxygenated hemoglobin, because oxygenated hemoglobin will absorb different light spectra and deoxygenated will absorb different light spectra. Okay. And this Beer law and Lambert law is because of the mechanics by which light is transmitted. Beer law tells about the concentration of anything which you are trying to measure, and Lambert law is telling you about the path length. It has nothing to do, sir. nothing else to do. So if someone because you are reading the books only, the result is in front of you. And plethysmography is to measure the pulsatile flow. Okay. And when I'm asking you what are the limitations of pulse oximetry, you should be telling about the very common thing, hypothermia. Low cardiac output state, you are jumping directly on the henna and nail polish. You are not telling the common thing. If it is not properly placed, then it is causing problems. Even if you tell one or two, that's it. You don't need to reproduce the whole page of pulse oximetry. Okay. So Untitled CO2 working principle is infrared gas analyzer. Infrared gas analyzer, because there is difference between paramagnetic gases and infrared. Infrared is for having any molecule which has more than one different atoms, and paramagnetic analyzer is for oxygen and nitrogen. Nitrogen has 2 molecules of nitrogen. Oxygen has 2 molecules of O2. And CO2, right, one is carbon, one is oxygen. Okay. So this is difference between infrared and infrared gas analyzer is for any other thing. Infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy. And the word which you said, I have never read. I'm not sure whether it is correct or not, but I have never heard this plethysmospectrography. I don't know. Maybe you are wrong, right? But I have never read about it. Please try to get the answer of simple things. I did not ask even a single difficult question. Even I did not ask. I did not ask you about the wavelengths because I don't remember myself. So I am not asking you. But they can ask you what wavelengths are for infrared, what wavelengths are for the other one. Okay. Try to be confident. Try to speak out something, because in the exam, even if you are telling something you will be finding the answer. Like you both of you and Hamad, both of you couldn't pick the question at all. In the real time Viva, believe me, you will have margin to correct yourself, and they will give you some hint. But try to, now this should be an eye opener. Open the book, make a list of 10-15 equipments which we are using, and you should be knowing about the working principles and what are the limitations. I told you many times, you will not be asked too much details. Simple, at least if you tell this thing, you will pass. If they are asking, like I asked you about, the last question was what is the advancement? So it is coaximetry, which is having more than one wavelength. So it will be more accurate. Okay. So this detect the carbon monoxide also.
Yes, it will also pick carbon monoxide. And advancement is to use it in the jugular venous to have cerebral perfusion. So these are the things which are actually advancement. And please read about all the equipment, make a list. There will be not more than 20 equipments, and you should have the answer like I told you. The working principle Okay, of So these are pulse oximetry. very nicely written in the Simpson Tokes book, as in Dr. Zishan's drive. Yes, Tokes books have actually every book is good, every book is bad. You will find, you have to roam around and you will find the answers. Okay, so next question is to Sidra. Yes, Sidra, are you ready? Yes. Okay. There is a there is a young boy, 10 years old, presented for adenotonsillectomy for tonsillectomy. Okay, 10 years old boy for tonsillectomy. So first of all, what are the anesthesia concerns in this patient? This is a 10 years old boy. So we have this patient has large tongue. We have difficult intubation because of large tongue and anterior larynx. And Large tongue will be there up to 10 years. no. Okay. Large tongue will be Anterior there larynx? up to 10 years. No. No. Okay. Okay. What else? Difficult airway. One thing. What else? Difficult airway. And this patient is have because they have disease. इनमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके एफआरसी लो होता है पेशेंट्स का. और Again, my question is that will it be there for 10 years old? At what age alveoli will develop? Okay. Next. 1 minute pass. Okay. What next? and What are concerns related to tonsillectomy? As an anesthetist, if you are doing a tonsillectomy, what things you should be taking care of? we have to go to we have to go to the हमें कफ इजीली डालनी है, थ्रॉट पैक करना है हमने, और देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग. तो जब भी हमने एक्सट्यूबेट करना है तो पेशेंट को हमने लेफ्ट रेफर एंड हेड डाउन पोजीशन में एक्सट्यूबेट करना है. और हेड डाउन पोजीशन में एक्सट्यूबेट करना है. हेड डाउन. ओके, ताकि नहीं भी एस्पिरेशन होनी तो भी विद ग्रेविटी ट्रेवल करके ना नीचे आ जाए सब कुछ, स्टमक का कंटेंट. Is there anything related to endotracheal tube in these patients? Tough PTP or usually we have to use RAE tube क्योंकि इसकी किंकिंग होने के चांसेस होते हैं. जब वो किंकिंग होने की वजह सिर्फ एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है या और भी कोई रीजन होती है? इस सर्जरी में कोई ऐसी चीज डालते हैं जिसकी वजह से ट्यूब किंक हो जाती है? गैग लगाते हैं. बाउल डेविस माउथ गैग. ठीक है, that is the thing. Okay, this patient, you did it, and post-operative period, after five hours you are being called again. That patient is very dyspneic, patient is uncomfortable, and patient is vomiting, and they are suspecting that it is bleeding. So how will you evaluate? सबसे पहले हम पेशेंट के जो है उसके हाइपोवोलेमिया होगा पेशेंट, तो हम उस पेशेंट के जो है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर देखेंगे. पेशेंट को हम उसको फ्लूइड रिससिटेट करेंगे पेशेंट का, और फिर उसके बाद हम उस पेशेंट को ऑप्टिमाइज करके फिर हम उस पेशेंट को would you like to put oxygen? Yes, oxygen देंगे हम. Would you like to discuss with the surgeon, and would you like to inform the OR staff that maybe patient is coming back to OR? Yes sir. Would you like to consult the hematology
because maybe you need blood. We have to arrange some blood. Would you like to pass NG tube? Yes, we have to pass it. Because maybe What there will is be some the blood, problems if you don't put NG? And what will be the problems if you pass the NG? अगर हम एनजी नहीं डालेंगे तो मे बी उससे कुछ ब्लड जो है वो एस्पायरेट क्या हो, तो इस तरह से हम लोगों ने एनजी डाल के और उसको हम लोगों ने एस्पायरेट करना है। और अगर आपने एनजी डाल अगर- दिया तो क्या होगा? अगर हमने ऑलरेडी पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग होगी तो उसको आई डोंट नो, पर एनजी डाल दिया। Are you affecting some natural mechanism by putting NG? Okay, if patient is aspirating fresh blood and patient is aspirating gastric content, which is more dangerous? गैस्ट्रिक कंटेंट। Why? बिकॉज उसमें एस्पायरेशन निमोनिया के चांसेस है। ब्लड से नहीं होता? ब्लड से भी होता हो। ब्लड से भी होता हो? ओके, मिनट्स हो गए। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को ये मैंने तोते की तरह उठवाया, अगर आप लोगों ने ये जिसने अटेंड किए हों, जीशान बोलो क्या होंगे एनेस्थीसिया कंसर्न? 30 सेकंड्स में बताने हैं। सर एनेस्थीसिया कंसर्न्स हमारे पीडियाट्रिक भी होंगे और अकॉर्डिंग टू द सर्जरी भी होंगे। अभी हम Very ई good. टॉन्सिल की बात पीडियाट्रिक कंसर्न्स में हमें हाइपोथर्मिया का कंसर्न है, हमें अप्रोप्रिएट एनेस्थेटिक इक्विपमेंट का कंसर्न है, हमें अप्रोप्रिएट ड्रग डोजेस का कंसर्न है, हमें पीडियाट्रिक एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस का कंसर्न है। उसके बाद जब हम टॉन्सिल पे आए तो टॉन्सिल के में हमें नंबर 1 ये पेशेंट्स जो हैं ये रिकरेंट इन्फेक्शंस इनमें होती हैं, नंबर 2 इनमें ओएसए का कंसर्न होता है, इंसिडेंस होता है, फिर इनमें शेयर्ड एयरवे का कंसर्न होगा हमारा। उसके बाद फिर पोस्ट ट्यूब किंग बता post दिया था, operative- शेयर्ड एयरवे है, डिसलॉज हो सकती है, थ्रोट पैक, ये उन्होंने बता यस दिया। सर, और यस सर, थ्रोट पैक। उसके बाद फिर पोस्ट ऑपरेटिव क्या नाम है, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग कंसर्न ये होंगे, और पोस्ट ऑपरेटिव एयरवे प्रॉब्लम्स ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ और एडिमा ऑफ आवर टंग और एवरीथिंग। जो सेकंड जो बाद में था ना, आपने इवैल्यूएशन में इन्होंने बताया था ना, तो उसके अंदर आपने ये कहेंगे असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन और यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। सेकंड एनेस्थीसिया होगा, एयरवे एडिमा हो सकता है, दोबारा ट्यूब आपको एक साइज कम यूज करनी है, ठीक है। और आप सबसे पहले तो एयरवे का कंसर्न है कि एयरवे टॉन्सिल ब्लीडिंग टॉन्सिल की बात कर रहा हूँ कि उसमें मींस लाइक इंटुबेशन विल बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ब्लड इन द एयरवे, patient will be very anxious, parents will be anxious, hypotensive भी हो सकता है due to hypovolemia और bleeding की वजह से शॉक मिल सकता है, और सारा कुछ मतलब बेसिकली देखें आपका एयरवे का एडिमा है। और जो मैं आपसे एनजी का ट्यूब क्वेश्चन पूछ रहा था ना सिद्रा, जब एनजी पास कर देते हैं तो आप जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होता है वो आप बंद कर देते हैं। एनजी की वजह से नॉर्मल लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो जाती है और एक्चुअली एस्पिरेशन का रिस्क हो जाता है, और एक्सट्यूबेशन इनको अवेक आप कहते हैं, और एक्सट्यूबेशन के बाद आप उसको लैटरल पोजीशन में कर देते हैं। हेड डाउन, ये आप लोगों को बहुत दफा मैंने बताया है, हेड डाउन करने से तो कोई बंदा नॉर्मल बंदा हेड डाउन लेटता है? किसी का देखा है आपने हेड डाउन लेटते? सिर्फ हमें वॉमिटिंग के जब देखें वो होता ही है कि अगर वॉमिटिंग हो गई है तब आप हेड डाउन करेंगे। इसलिए आप हेड डाउन करेंगे ताकि अगर कोई चीज स्टमक की तरफ लंग्स की तरफ जा रही है तो वो मिनिमाइज हो जाए। लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप उसको लैटरल पोजीशन में हेड डाउन करके ही एक्सट्यूबेट करेंगे। उसमें तो लैटरल पोजीशन में हेड डाउन करके एक्सट्यूबेट करेंगे तो नहीं भी उसने एस्पिरेट करना तो भी वो करेगा। समझ आ गई बात? ठीक है। ये क्योंकि किताबों में रट्टा जब मारेंगे तो यही होगा। मैं बार बार इसलिए आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ ताकि जो लोग बाद में भी सुने उनको भी ये बात समझ आए कि अल्लाह के वास्ते किताबों से बाहर निकल है। ठीक है। ये सहरिश भी किताबों के रट्टे सुना रही थी। हिना का लफ्ज देखो ना, मतलब इतने हम लोग जहनी तौर पे किताबों के को करते हैं कि उसके बगैर जिंदा रहना दुश्वार है। मेहंदी नहीं बोल रही, वो हिना बोल रही थी। ठीक है, क्योंकि किताब के अंदर हिना लिखा हुआ है, इसलिए मेहंदी सारी जिंदगी मेहंदी बोल बोल के लड़की के मुंह से भी हिना निकल रहा है क्योंकि किताब का इतना सहर है। ठीक है, चलो
ये क्वेश्चन के अंदर बस यही सारी बातें हैं। आपने असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेटस, नॉर्मल पैरामीटर्स इसके अंदर नहीं होंगे, नॉर्मल जो एडल्ट के पैरामीटर्स नहीं होंगे, ठीक है। और आप उसमें कर रही थी, इसलिए मैंने जानबूझ के 10 इयर्स बोला था कि 10 इयर्स के अंदर बहुत सारी चीजें एडल्ट के करीब करीब होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी 10 साल का बच्चा भी एंजाइटी का शिकार जरूर होगा। 10 साल के बच्चे के अंदर भी अभी जो है वो बाकी चीजें आपको ख्याल रखना है। आपको इक्विपमेंट फिर भी डिफरेंट ही चाहिए होगा, आपको हाइपोथर्मिया का ख्याल फिर भी रखना है, आपने ड्रग की कैलकुलेशन फिर भी केयरफुली करनी है, ठीक है। और एक और चीज इसमें होती है कि आप डिस्कस करेंगे सर्जन से, क्योंकि 10 साल के बच्चे में आमतौर पे एडिनाइड्स नहीं होते, तो अक्सर औकात सर्जन आपको नेजल ट्यूब का भी कह सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है जो 10 साल के बच्चे में या एडल्ट के अंदर अगर टॉन्सिलेक्टमी आ रही है तो वो आपको ये कह सकते हैं कि आई वांट नेजल एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, क्योंकि उसमें उनका विजुअलाइजेशन बेहतर हो जाती है, उनको परफॉर्म करना इजी हो जाता है। ये एक वाहिद चीज थी जो एक्स्ट्रा थी। अब कौन, हाँ अब जीशान सर इन बच्चों में फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी नहीं होगा? नहीं हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने का इससे ताल्लुक नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसलिए हो सकता है क्योंकि वो टॉन्सिल्स की वजह से है। किसिंग टॉन्सिल्स का नाम सुना है आपने? हाँ जी जी, किसिंग टॉन्सिल्स की वजह से ओएसए होगा। वो एडिनॉइड जरूर है, जो टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स के पेशेंट्स में जो ओएसए होता है वो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एडिनॉइड्स, वो टॉन्सिल्स की वजह से भी तो होता है ना। एक्चुअली तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है फॉर एनी गुड रीजन, ठीक है। अगर वो इतनी ज्यादा टंग फॉल कर रही है और साथ उसके टॉन्सिल्स इतने बड़े हो गए हैं कि उसने एयरवे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। बाकी रिकरेंट इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, उसमें आपने एक विंडो पीरियड ढूंढना होता है, क्योंकि ये आप बिल्कुल 100% आपको हलाल हालात नहीं मिलेंगे आपको। यू जस्ट फाइंड आउट, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू गेट अ विंडो पीरियड के जिसमें पेशेंट को मिनिमम इन्फेक्शन अगर हो है भी तो मिनिमम इन्फेक्शन है। इसके अंदर एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कब किन सूरत हाल में आप नहीं करवाएंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है चाइल्ड अपर आरटीआई के अंदर, कि भाई कौन सी चीजें होंगी जिन पे आप करेंगे। अगर बहुत ज्यादा पुरुलेंट सिक्रीशंस हैं, फीवर है, बहुत ज्यादा कफ है, वीजिंग है, तो अब आप नहीं करवाएंगे। अदरवाइज आपने करवाना है। नॉर्मल स्नीजिंग हो रही है या नॉर्मल उसको प्रोडक्टिव कफ हो रही है, उसमें ये नहीं है कि आप नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये तो पेशेंट्स में 100% तो ठीक होंगे ही नहीं, इसीलिए तो आप उनकी सर्जरी कर रहे हैं कि बार बार उनको इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन जीशान से पहले और कौन रह गया है? ये डॉक्टर फैसल सिंधु साहब। सर मैं भी रहेंगे डॉक्टर जी जी, डॉक्टर आबिद, यस यस यस, आप तो सबसे पहले आए थे। आप इसके बाद फैसल आपकी बारी है। अच्छा, एक नाउ क्वेश्चन टू यू, ओके। इसका सर जीशान के मैं आई एम सॉरी, डॉक्टर जीशान से कि मुझसे सर? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी 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 सर। जीशान एक एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे से, वो बहुत ज्यादा डांट खा चुका है, इसलिए अब मैं इतने आसान सवाल जो बार बार ये मेरे से सुन चुका है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसको नहीं आते होंगे। लेकिन अभी भी बारी आएगी, फिक्र ना करो, उससे भी अभी सवाल पूछता हूँ, फिक्र ना करो। आप सब लोगों की बेइज्जती के बाद जीशान की भी बेइज्जती करनी है थोड़ी सी, ताकि वो गलतियां मजीद इंप्रूवमेंट हो उसकी, ठीक है। डॉक्टर जीशान माशाल्लाह सर बहुत काबिल है इस टाइम पे। ओके ओके ओके, so you have a 36-year-old female, 30 weeks of gestational, presented in emergency with severe headache and the blood pressure is 200 by 120. So you are being called by the obstetrician to get your opinion, and might be patient might go for cesarean section. They are trying to optimize the patient. So what input would you like to give? You are being asked in the emergency with 200 by 120 of blood pressure, headache, 30 weeks pregnant. Yes. I will start with the pre-operative assessment. I'll ask the lady about the previous history regarding, especially concentrating on the hypertension and other neurological dysfunction, such as she is having headache, which is giving me an idea of she may go to preeclampsia. I'll advise for after detailed history. I'll go for the lab reports. I'll ask for the CBC. I'll go for urine RE. What would you like to see in CBC? Sir, first of all, I'll see the anemia, which may be physiological. Along with that, I will see the low platelet counts.
if they are present. Along with that, I will concentrate on, I may ask for a peripheral smear in which I can see hemoglobin In this destruction. scenario, you will take Mhm. peripheral smear? No, in a I patient may in emergency? no, sir. I'll just go for a CBC initially, concentrating on the platelet count. After that, I'll concentrate on a urine RE for proteinuria if there is. Along with that, I will Okay, just a concentrate on second. the Just a blood pressure with 200 by 120 without proteinuria, and blood pressure with 200 by 120 with significant proteinuria. What is difference? Sir, without proteinuria, maybe she is not pre-eclamptic. Maybe I may be wrong. Not Maybe, PAV. but Patient without proteinuria, you don't label preeclampsia. This pre-eclampsia. is And after, hypertension. if This is exactly, and if PIH. there exactly, and if there is proteinuria, that she is definitely going into pre-eclampsia. She is pre-eclamptic and may fall And you in told eclampsia. about low platelets. What is that condition called? HELP syndrome, sir. Basically, What else it is is there in HELP syndrome? Hemolysis, elevated liver enzymes. I'll go for LFTs. There is actual and proteinuria. You just started with evaluation. You asked about previous history, and then you asked for labs. Would you like to do at that time anything else than this thing? The patient is about to having fits. Am I right? Yes, sir. I'll again regarding anesthesia care, airway. I'll assess it because she may I have to go for an emergency cesarean. I'll discuss the plan with the surgeon, what she wants, and then after discussing everything, depending on the scenario, I'll proceed for an emergency cesarean, most probably for with general anesthesia. Would you like to give oxygen? Yes. Would you like to while give? maintain. Would you like to start magnesium sulfate? Yes, sir. I will give, first of all, I'll give that oxygen. Then for circulation, for lowering the blood pressure, I'll go for magnesium sulfate. And how much magnesium sulfate will you give? Sir, would you like to do something before you start magnesium sulfate? How much are therapeutic levels of magnesium sulfate? Serum calcium, maybe. I'm sorry? Because serum calcium? Serum calcium? Okay, what is the relationship between serum calcium and serum magnesium? You want to start magnesium and you want to check serum calcium? I guess magnesium causes hypocalcemia, maybe. Okay. No, I'm sorry. No, you are right, but okay, fine. Would you like to else to see what is the common thing which you should do before you start magnesium? A journal. 4 minutes are done. Okay, I'm so sorry. I should pass it. Okay, what would you like to choose in this scenario? They decided, they give DEXA cover, they consult with neonatologist, the patient developed a fit. Okay, and now that was controlled with diazepam. Now they want to proceed for surgery. What anesthesia would you like to give? General anesthesia. What induction medication would you like to give? What complications can occur during induction? Aspiration chances will be very much increased. Aspiration chances, I may have difficult airway, and after that I should blunt the sympathetic outflow. I should. How will you block the sympathetic? I'll go with propofol. Propofol will be my anesthesia choice. After that, I may give labetalol. What muscle relaxant would you like to give? Sir, I'll if I'm doing that rapid sequence induction, I'll definitely go with SUX. Okay. Is there any other option than rapid sequence? Modified rapid sequence, maybe I'll use rocuronium. If you are giving rocuronium in a patient with difficult airway, suspected because pregnant patient is difficult, would you like to have something with you? Sagamedex, sir. Okay.
So this patient had developed fits. So Yes, would sir. you like to do something for its prevention? Sir, again, magnesium is on its way. Matlab, magnesium is going to the patient. I should have BP lowering drugs such as If you have to choose between propofol and thiopentone, what would you like to choose? Thiopentone or propofol? thiopentol may be the answer, but I don't have good experience with thiopentol. I haven't used it that much, so I will stick to the things that I have used more frequently. No need for this answer. If you have thiopentone, the for choice for you is thiopentone. If they are even I will tell you what you have to. Okay, then you had given magnesium. Would you like to take care of something? Sir, yes, magnesium causes again it will increase the muscle relaxant effect. One thing. So how would you monitor? By the serum magnesium levels. Like there was a toxicity chart. I may be wrong. Like 7 to 10, I will lose milliequivalent per liter. Again, if you are reproducing, what was my question? How will you monitor? Yeah, the answer is neuromuscular monitoring. In neuromuscular monitoring. Okay, yes, you are reducing the dose and you are doing the neuromuscular monitoring. Okay. Yes, and yes, how will you extubate the patient? Would you like to extubate the patient, or you will send the patient intubated to ICU? I may send the patient again intraoperatively. I'll go for the if the surgery went good, if there were no like if we are giving magnesium sulfate, again one of the complication of magnesium sulfate is again cardiac cardiac arrest. If the surgery went uneventful, I may extubate her. Okay, and then at the time of extubation and after extubation, is there any problem which you can face? Again, high blood pressures, post-operative nausea, vomiting, pain. Again, during extubation, I'll go for deep extubation. Deep extubation. Deep extubation in a patient with the risk of aspiration. So you want to patient to aspirate? No, sir. But if I did a wake extubation, it may again increase her pressures and she may get. So you are in jungles and you don't have any medication to treat that stress response. You did the same in the induction. So is there any problem in giving the same? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे खुद बताओ आबिद कि आपने कैसा आंसर दिया है. I'm so sorry. ये सबसे आसान क्वेश्चन है. Yes, sir. और ये क्वेश्चन पेपर आउट है. यकीन करो ये पेपर आउट है. ये या हेमरेज, ये इन दोनों में से हर दूसरे बंदे से यही सवाल पूछते हैं. देखो फिर मैं बार बार आप लोगों को मैं मजबूर हूं कि मैं आप लोगों को ये इस वक्त, क्योंकि इस टाइम पे शायद आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए और आज अगले लोगों तक ये बात पहुंचा दे. किताबों का जब आप करने की, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ मैग्नीशियम दे रहे हो कैसे करोगे, तो आपने भाई मैग्नीशियम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका आपने जिक्र ही नहीं किया है. कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट से पहले भी कोई चीज होगी ना, वो उसको आपने डीप टेंडन रिफ्लेक्स का नाम लेना था, यूरिन आउटपुट का नाम लेना था, सीरियल ब्लड लेवल्स का नाम लेना था, या डायरेक्ट आपने कार्डियक अरेस्ट करवा देना है मैग्नीशियम से. ठीक है, आप कॉमन देखें, ये 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए. मैग्नीशियम थेरेपी, बेसलाइन लेवल्स, बेसलाइन यूरिन आउटपुट. अगर एक पेशेंट का पहले यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, आप उसको मैग्नीशियम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम फिट्स के लिए फिर आप कोई और मेडिकेशन यूज करेंगे. उसकी वजह यह है कि आपने मैग्नीशियम देना शुरू किया, उसका यूरिन आउटपुट नहीं है, उसको एरिथमिया से उसकी डेथ हो जाएगी. फिट से तो बाद में शायद डेथ हो, मैग्नीशियम देके आप पहले मार देंगे उसको. तो ये जुमला बोलना याद कर लें. Whenever you are starting magnesium, make sure patient is adequate urine output, because magnesium toxicity can occur. If there is reduced urine output, you will try to reduce the dose of magnesium. ये इतना सा जुमला बोलने में कहाँ क्यों मुश्किल होती है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि बहुत इजी हुआ था. आप मरीज को गए देखने के लिए, आप मरीज को ना आप उसके बेसिक एनेस्थीसिया केयर आपने बता नहीं रहे, आप उससे उसकी कहानियां पूछ रहे हैं कि पहले तुम्हें हुआ था ऑपरेशन, वो तुम्हारे खानदान में तो नहीं किसी को ब्लड प्रेशर हुआ था. वो भाई उसको पहले ऑक्सीजन लगानी है, उसको प्रॉप अप करना है. उसके लिए आप फौरी तौर पे जो है वो आपका सर्जन के साथ डिस्कशन है, और इसके अंदर आपने बताना है कि भाई ये पेशेंट को आप फौरन डेक्सामेथासोन, अगर सर्जन ने नहीं लगाया है तो आप डेक्सामेथासोन लगवा देंगे.
आप NICU से बात करेंगे, आप ICU से बात करेंगे, आप सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे, आप उसकी बेसिक करेंगे, आपने उसका ब्लड लेवल ABGs करेंगे, आप उसका ब्लड लेवल भेज देंगे और उसके बाद आप उसको मैग्नीशियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपका इसमें एम 3 चीजों का है। नंबर 1 कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, नंबर 2 कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ फिट्स, एंड नंबर 3 डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये 3 बातों का आपने वहां पर बता देना है कि प्रायोरिटी इज गिवन टू द मदर ऑब्स्टेट्रिशियन, और आपकी टीम डिस्कशन के साथ वो कोशिश करेंगे कि भाई इस पेशेंट की प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग किया जा सके, मगर ये आपका डिसीजन नहीं है कि बेबी कब डिलीवर करना है। दिस इज नॉट योर डिसीजन, दिस इज ऑब्स्टेट्रिशियन डिसीजन। तो आप ये जुमला इस तरह याद कर लें कि देयर शुड बी अ टीम डिस्कशन, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विच इज गुड फॉर द पेशेंट आउटकम। तो उसके अंदर आप कोशिश करेंगे 30 हफ्ते का बच्चा सर्वाइव कर सकता है, तो आप ये नहीं है कि आप उसको मजीद पकाने की खातिर आप हांडी जला दें और वो माइक्रोवेव भी जल जाए, ये वो वाला हिसाब है, ठीक है। आप उसको बाहर उसको इंक्यूबेटर में रख के बच्चे को कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकता है बच्चा। लेकिन अगर पेशेंट को फिट्स पड़ गए, उसको आपने CVA का जिक्र नहीं किया, आपने हेपेटिक रप्चर का जिक्र नहीं किया, आप उसको ये बोले ना कि पेशेंट को जब आपने इंट्यूबेशन का रिस्पॉन्स किया है तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स पेशेंट कैन हैव CVA, उसको हेमरेज नहीं हो सकता, 200 ब्लड प्रेशर उसका पहले था, अब आपने उसको इंट्यूबेट करने की कोशिश की तो उसका ब्लड प्रेशर 240 पे जा सकता है, नीचे वाला 150 पे जा सकता है, तो उसको CVA नहीं हो सकता। तो आपने ये बोलना है ना, एग्जामिनर को खुद से नहीं पता चलेगा, आपने उसको बताना है। ये वो एक स्टूडेंट से पूछा जा रहा था, वो कहता है सर नो मसला ट्यूब में पा लिया हूँ, वो उससे डिफिकल्ट इंट्यूबेशन पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है नहीं सर मैं ट्यूब में डाल लूंगा, सर मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मैं ट्यूब डाल लूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आपने वहां पर ये सारी बातें बतानी है। जब आप बोल रहे हैं तो आप ये बोलें कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन सस्पेक्टेड है, एस्पिरेशन का रिस्क है। तो मैंने और एक और बात मैंने जानबूझ के ये हिंट दिया था कि क्या ऐसा पेशेंट जिसको एक्लिप्टिक फिट पड़ा हो और अब फिट्स फ्री हो, क्या उसमें स्पाइनल लगाया जा सकता है, एपिड्यूरल लगाया जा सकता है या नहीं? अवॉइड लगाया जा सकता है। तो आपने जुमला यही बोलना है कि आई विल इवैल्यूएट रिस्क वर्सेस बेनिफिट, एग्जैक्टली, क्योंकि आपने GA के ये एडवांटेज हैं, ये जुमला याद कर लें ये, क्योंकि चाहे वो जो भी सिनेरियो मर्जी पूछें ये जुमला आप बोल सकते हैं कि GA के एडवांटेज ये हैं कि एयरवे का कंट्रोल होगा और जो है वो, लेकिन एडवांटेज रीजनल का ये है कि आप उसका स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करेंगे, एयरवे की मैनिपुलेशन नहीं होगी, पॉलीफार्मेसी को अवॉइड करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर लेंगे। GA में रीजनल में क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोएगुलोपैथी हो सकती है, तो आप ये जुमला बोलेंगे कि अगर पेशेंट के अंदर उस टाइम पे कोएगुलोपैथी का रिस्क नहीं है, उस वक्त उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल पे PT-INR या जो प्लेटलेट काउंट है वो इतना सिग्निफिकेंटली खराब नहीं है, या उसकी और कहीं ब्लीडिंग की क्लिनिकली भी कोई हिस्ट्री नहीं हो रही है, तो आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट में आप उसको एपिड्यूरल या स्पाइनल के बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप GA भी दे रहे हैं तो क्या ऐसा पेशेंट जिसकी एक्लेम्पशिया की हो बाद में आप उसको आपको लगाना चाहिए एपिड्यूरल बिफोर एक्सट्यूबेशन या नहीं? अगर कोएगुलोपैथी नहीं है तो पोस्ट ऑपरेटिव लगा देंगे के लिए आप लगा सकते लगा सकते हैं, ठीक है। आप ये आपने सियासतदान बनना है, सियासत आप लगता है पॉलिटिकल टॉक शोज नहीं देखते, ठीक है। खवातीन को मैं कहूंगा स्टार प्लस के ड्रामे देख लें वाइवे से पहले 1-2, और आप लोग थोड़े से पॉलिटिकल टॉक शोज देख लें, ताकि आप लोगों को बातों को घुमा के करना आ जाए। ये सीधा सीधा अच्छे बच्चों की तरह लॉलीपॉप लेके बोलना जो आंसर है ना किताबों का, ये तबाही है। अभी तक जिसने भी गलत आंसर दिया है, आपने किताब पढ़ी हुई है, आपको सारी बातें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बोलना क्या है ये आपको नहीं आता। मैग्नीशियम, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैग्नीशियम लेवल्स, मैग्नीशियम के साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी एंड कार्डिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आपने बोलना है कि मैं उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्स, और जब भी आप मैग्नीशियम शुरू कर रहे हैं आपने एक बेसलाइन लेवल्स देख लिया, उसका यूरिन आउटपुट देख लिया, और आप यू विल कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और जो है उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है और उसके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ठीक है या नहीं, और आप उसकी ECG कॉन्टिन्यूअस ECG मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। ये जुमला आप इस तरह बोल दें, आप हो गए, कोई आपसे फेल नहीं करेगा, लेवल्स के ऊपर कोई फेल नहीं करेगा अगर आपने ये बता दिया, क्योंकि लेवल्स के अंदर एक मिली मोल में अलग वैल्यू है, मिली इक्विवेलेंट में अलग वैल्यू है, मुझे तो आज तक कभी जिंदगी में याद नहीं हुए, तो अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को सल्यूट करूंगा, लेकिन कोई एक याद कर लें और लेवल्स के ऊपर आपको कोई फेल नहीं करेगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ ये बता देंगे ना कि भाई यूरिन आउटपुट देखना जरूरी है और उसकी टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स देखने जरूरी है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है।
बाकी आपने ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए आप बता दें कि भाई इसको लेबिटालॉल हो सकता है सर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हो। हाइड्रोलाजीन आपने देखना है कि भाई कितनी डोज मिल चुकी है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। आपने मॉनिटरिंग का कोई जिक्र नहीं किया, आपने मॉनिटरिंग का बोलना है ना, ये वो आपको एग्जामिनर आपको नहीं चांस देगा, हम लोगों ने तो टाइम ही इतना लगा दिया ज्यादा। तो आपने ये जुमला याद करना पड़ेगा आपको कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग, इस पेशेंट के अंदर आपको इंट्रा-आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, because that will help you in maintaining the blood pressure, in evaluating the blood pressure and swings, क्योंकि swings आएंगी blood pressure। अगर आपने GA या स्पाइनल दिया है तो सॉरी, अगर आपने स्पाइनल या एपिड्यूरल दिया है तो आप बोलें कि these patients are hypovolemic, so you have to volume preload। और आपने जो गोल डायरेक्टेड का लफ्ज याद करा दिया ज़िशान को, ज़िशान बोलता है गोल डायरेक्टेड आपने देनी है। ज्यादा फ्लूइड अगर आप देंगे तो क्योंकि इनकी परमिएबिलिटी भी ज्यादा है, वैसे ही प्रेग्नेंट पेशेंट ओवरलोडेड होती है, और साथ आपने उसको लिबरल आपने फ्लूइड दे दिया तो पता लगेगा उसको पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कम देंगे तो उसके अंदर सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है आफ्टर स्पाइनल या एपिड्यूरल, ठीक है। तो ये है आंसर इसका। ये पेपर आउट है, ये पेपर आउट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर आउट है। यही आंसर, यही अल्फाज आपने बोलने हैं, चाहे हेमरेज हो उसमें मेजॉरिटी बातें कॉमन आ जाएंगी। हेमरेज वाले पेशेंट के अंदर भी आपने यही सारी बातें तकरीबन बोलनी है, सिवाय ये मैग्नीशियम के बारे में के अलावा वही डिफिकल्ट एयरवे है, वही रैम्प पोजीशन है, वही आपने रिड्यूस करनी है, मैक की रिडक्शन हो जाती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क ज्यादा होता है, लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट आपने करनी है। ये सारी चीजें आपको प्रेग्नेंट पेशेंट कहीं पे भी आ गया तो आप बोल दें विद मिनिमम वर्ड्स, लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट। अवॉइडिंग एर्टोक्वेवल कंप्रेशन बाय लेफ्ट यूट्राइन टिल्ट, इतने जुमले में आपको 5 सेकंड लगेंगे, तो आप लिख के ये याद कर लें, ठीक है। आप फैसल, थैंक यू सर। ओके, ज़ीशान कोई चीज मिस तो नहीं की इसमें, और कोई बात तो नहीं बताने वाली? नहीं सर, अभी हो गई है पूरी। हाँ, एक मैं इसमें भूल गया था कि पोस्ट ऑपरेटिव की जब बात कर रहे थे ना, तो पोस्ट ऑपरेटिवली आपने ये सारी केयर करनी है। आपने डीप एक्सट्यूबेशन, क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं? आप ये कहें कि मैं अब एक एक्सट्यूबेट करेंगे और रिफ्लेक्स इसको एयर रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करके, क्योंकि डीप एक्सट्यूबेशन है वो आपको फंसा लेगा। डीप एक्सट्यूबेशन इज नेवर अ गुड थिंग एक्चुअली, आप उसमें फंसने के ज्यादा चांसेस हैं। आपने जुमला ही बोलना है ना कि लाइडोकेन दे दूंगा, फेंटानिल दे दूंगा, बीटा ब्लॉकर दे दूंगा, जो है ना वो उसकी गुड न्यूरोमस्कुलर उसकी पावर वापस आ गई हो, आप उसमें आप डेक्समेडिटोमेडीन का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनसे आप एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट करके आप कहेंगे, और ये जुमला याद कर लें, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। एक चीज पूछनी है पर्सनल जी, पोस्ट ऑपरेटिवली लास्ट फिट के बाद 24 आवर्स तक मेरे ख्याल मैग्नीशियम चलाते हैं, और आपने अगर वो टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाए या यूरिन आउटपुट कम हो जाए तो आप रिड्यूस कर देंगे। और यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिवली जब बेबी के डिलीवर होने के बाद ये चांसेस कम होते जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी कंटिन्यू रखना होता है टिल 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स या 24 आवर्स आफ्टर लास्ट फिट, ठीक है। अगर मैं एक्सट्यूबेट तो हम इजीली कर सकते हैं, एक्सट्यूबेशन का तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आता। आई एम सॉरी, मैं कह सकता एक्सट्यूबेशन का तो कोई ऐसा नहीं है ना कि एक्सट्यूबेशन के लिए तो वो चीज नहीं देखेंगे। मतलब अगर पेशेंट जैसे यूट्रस आप प्लेसेंटा डेवलप वो कर देते हैं, निकाल देते हैं, आफ्टर दैट द पेशेंट नहीं, फौरन तो नहीं इफेक्ट होता ना, फौरन ये थोड़ी होगा उधर से प्लेसेंटा निकला, उधर से ब्लड प्रेशर टू फिश हो गया। नहीं मतलब मतलब चांसेस काफी कम हो जाते हैं ना। नहीं, इमीडिएटली 15 देखें आधे घंटे के अंदर तो नहीं फर्क पड़ेगा ना, अभी तो वो सारी चीजें रिवर्स हो रही है। एक्सट्यूबेशन आपने वही बातें जो आपने इंट्यूबेशन के वक्त बताई हैं, आप वही बातें बताएंगे। सिंपैथेटिक स्ट्रेस सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये वैसे तो जो हम लोग आम रूटीन में जिनको एक्लेम्पशिया जो होता है उन्हें वेंटिलेट करते हैं कोई 12 to 24 आवर्स। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर कि हम नहीं तो नहीं, वो आप खामखा देखिए, मेरी बात सुन, एक यंग पेशेंट है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यों वेंटिलेट करते हैं? गलत प्रैक्टिस है ये जो भी करता है ये बिल्कुल गलत करता है, ये गलत प्रैक्टिस है। गलत प्रैक्टिस को नहीं बोलना, वो सिर्फ मैं देखें, मैं भी बैठा हूँ ना कहीं THQ के अंदर, तो मैं भी यही बात करूंगा, मेरे से मरीज जिंदा सलामत चले जाए, ICU वाले जो कुछ करना करें। नहीं, आपने अगर एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया फुल, ये आंसर रख लें, जब भी आपको कहीं बताना है आप ये कहें कि अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, सिग्निफिकेंट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मसला ना हो, कोई बहुत हाई डोज आइनोट्रो वेजोप्रेसर्स पे ना हो, तो आप पेशेंट किसी को भी इंटुबेटेड ना भेजें ICU में,
ठीक है। और अगर उसकी मैकेनिकल और गैशियस एक्सचेंज के फंक्शन, यानी कि उसके एडिक्वेट इंस्पिरेटरी, नेगेटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, एडिक्वेट पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, फोर्स जो जनरेट कर रहा है वो, उसका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का इफेक्ट हो गया है, तो आप उसको क्यों इंट्यूबेटेड भेजना है आपने? कोई रीजन नहीं है ना। वो तो आप एक मजीद, अभी तो आप कह रहे हैं कि उसको जिए ही नहीं देना, अभी आप कह रहे हैं कि 48 घंटे तक उसको इंट्यूबेटेड रखना है, ये खुला तजाद नहीं है सर? हाँ जी सर, कुछ वो ठीक है सर, वो मैं यहाँ पे है ना, वो रीजन ये देते हैं कि अगर क्लैम्पटिक है ना तो उसको पोस्ट ऑफ जिस तरह एक तो जीसस अगर डाउन है उसका, एक देखो, उस वजह से, दूसरा मैं ये आपको कि ये दोबारा स्टैंडर्ड फिक्स ना पड़े। प्रैक्टिसेस नहीं है ना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस नहीं है। और एक और बात ये कि ठीक देखें, ठीक कुछ चीजें होती हैं कि जो प्रैक्टिकल बतानी होती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो प्रैक्टिकली हम करते हैं वो क्रैप होता है, ठीक है। ज्यादातर ठीक सर, चीजें जो हम कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली वो क्रैप होता है एकेडमिकली, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होता है लोगों को और वो कर रहे होते हैं। मैं ये कई दफा बता चुका हूँ कि मैंने कभी जिंदगी में 18 साल से मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, मैंने कभी आज तक मैंने स्पाइनल की डोज प्रेग्नेंट पेशेंट में कम नहीं की। लेकिन क्या मैं एग्जाम में ये बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। एग्जाम के अंदर मैं बोलूंगा जी मैंने तो रिड्यूस करनी है डोज। प्राइवेट प्रैक्टिकली अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप 15 मिलीग्राम के बजाय 12 मिलीग्राम देंगे, मरीज चीखे मारेंगे, आपको सारी किताबें भूल जाएंगी। अगली दफा आपको जब प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट आपको बुलाएगी नहीं ना कि डॉक्टर साहब आपने स्पाइनल नहीं अच्छा लगाया था, उसको कुछ नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकलिटीज डिफरेंट होती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। एग्जाम के लिए आपने वो चीज बोलनी है जो सेफ हो, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपने वो चीज नहीं बोलनी होती जो प्रैक्टिसेस हो रही हो। डेक्सामेथासोन आपने हेड इंजरी में नहीं देना होता, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर बंदा दे रहा होता है। मैंने जहां पे देखा है, मैंने इमरजेंसी में डेक्सा फी सबिलिल्लाह हेड इंजरी को लगा रहे होते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली तो नहीं लगना चाहिए डेक्सामेथासोन ना। डेक्सामेथासोन आपने एक चीज पूछनी जी जी सर, जो हम एक्सटुबेशन के टाइम पे प्रेशर रिस्पांस को ब्लंट करते हैं, जी जी स्पेशली इस पेशेंट में, ये जो क्लैम्प्टिक फिट वाला पेशेंट है, इसमें लाइडोकेन दे सकते हैं? लाइडोकेन इज सेफ? बिल्कुल लाइडोकेन सेफ है। और क्या मतलब लाइडोकेन क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी? न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं ना इसके भी, नहीं, वो आप मतलब इसमें वो फिट्स मसला के नहीं है। रेफरेंस से कह और रहे हैं, जी सर, तो वो आप इतनी डोज थोड़ी दे रहे हैं। 1 मिलीग्राम हाँ आपका, डोज तो थोड़ी होती है। आप उसमें यस सर, देखें ना, अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उससे ज्यादा फिट्स के चांसेस होंगे, या लाइडोकेन की एक बहुत थोड़ी हाँ सी डोज से रेस्पिरेटरी ज्यादा चांसेस होंगे। हो गया। दूसरी चीज सर कि जब एक्सटुबेशन के टाइम पे इसमें हम रेमिफेंटेनिल भी दे सकते हैं बिल्कुल, या कह सकते हैं, क्योंकि रेमिफेंटेनिल मतलब ओपियाइड है, ओपियाइड थोड़ी सिडेशन करेगी, शॉर्ट एक्टिंग है लेकिन स्टिल शॉर्ट एक्टिंग है ना, तो आप उसमें बीटा ब्लॉकर आप बोल दें, आप टाइट्रेट करके दे बीटा, देंगे। मतलब आइडियली ठीक है, देखें प्रेफरेबली तो आप बीटा ब्लॉकर एक ही होगा, पेशेंट एस्मोलोल में, होगा। आप ये नहीं होगा कि एक ही पेशेंट में आपने लाइडोकेन भी दे दिया, एक ही पेशेंट में आपने रेमिफेंटेनिल भी दे दिया, एक ही पेशेंट में आपने प्रोपोफोल भी दे दिया। आप चूज करते हैं ना, बिल्कुल आप उसको ये कहें कि वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस एंड वी कैन जस्ट चॉक आउट अ प्लान, कि हम इसमें हमारे सही पास ये ऑप्शन है, हम वी कैन गिव अ स्मॉल डोज ऑफ लाइडोकेन। हो सकता है सिर्फ कोई लाइडोकेन से ही टॉलरेट करे, और आपके पास अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा है तो आप उसको बीटा ब्लॉकर दे दें, ठीक है। सही। साथ आप उसके स्मॉल बोलस ऑफ आप फैंटेनिल दे दें, आप उसकी स्मॉल डोज ऑफ रेमिफेंटेनिल दे दें, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से है। सर ईटीटी ट्यूब के अंदर कोई चीज इंस्टॉल कर सकते हैं ब्लंटिंग के लिए? वो तो ज्यादा रिफ्लेक्स करता है। ईटीटी अच्छा। ट्यूब के अंदर जो होता है ना, वो क्या होता है चक्कर, वो होता है इंट्यूबेशन के वक्त कि आप कॉर्ड्स को स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड्स को स्प्रे करने के नुकसानात क्या होते हैं कि एक तो इटसेल्फ इससे लेरिंगोस्पैज़म हो सकता है। अगर पेशेंट की आपने अभी पूरी तरीके से नहीं हुई और आपने उसको स्प्रे किया, ठीक है, तो इटसेल्फ कैन कॉज लेरिंगोस्पैज़म या इवन ब्रोंकोस्पैज़म कर सकता है थ्योरेटिकली, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आमतौर पे आप इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने एयरवे को एनेस्थीसिया दे दिया है, तो एस्पिरेशन अगर होगी तो एस्पिरेशन का तो कोई बॉडी गार्ड को आपने सुला दिया है, तो ग्रेविटी बेस जाती रहेगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज कंट्रोवर्शियल है। और एक और इस पे बहुत स्टडीज हुई हैं कि लाइडोकेन आईवी वर्सेस लाइडोकेन स्प्रे विच इज सुपीरियर, तो एक्चुअली देयर इज नॉट मच डिफरेंस। तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव लाइडोकेन आईवी रादर देन स्प्रे, ठीक है। स्प्रे में तो आपको देखे ना पहले आप, अच्छा एक और मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ, ये क्यों प्रैक्टिकली एक डिजास्टर है कि आप पहले पकड़ के ना, लोग क्या करते हैं, अभी वो मरीज का पूरी तरह मसल रिलैक्सेंट नहीं होता, पकड़ के लेरिंगोस्कोप डाल के ना उसके ब्लड प्रेशर की तबाही मचा के स्प्रे करते हैं कि वाह 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 हम लेरिंगोस्कोप स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट कर रहे हैं।
मतलब हम मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? कि Yes, आप कहा यह जाता है कि लेरिंगोस्कोपिक स्ट्रेस रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को क्या है पता है आपको? सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए? रिलैक्स होगा। सॉरी, सबसे पहली जो पहले चीज तो है ना वो शॉर्ट लेरिंगोस्कोपी टाइम. यस, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया एंड शॉर्ट लेरिंगोस्कोपी टाइम. ये बाकी सारी चीजें जो है ना ये इसके अलावा है. ठीक है, आपने पोजीशनिंग अच्छी बनाई है, आपने रैंप पोजीशन बनाई है, आपने अपने आप को कंफर्टेबल किया है, पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट किया है, और उसके बाद आप कर रहे हैं तो आपका ये चीजें जो भी आपका हो रहा है ये प्रैक्टिकली भी है. ये चीज रैंप पोजीशन का बारे में वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी हैबिट बना लें कि हर पेशेंट को रैंप पोजीशन में करके इंट्यूबेट करें तो आपको लगेगा कि हम पहले करते क्या रहे हैं. लोग जो झुक के तशद्दुद के साथ इंट्यूबेशन करते हैं वो अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और मरीज के साथ भी जुल्म करते हैं. ठीक है, तो ये एक वैसी बात है. अच्छा, एक सिनेरियो और करते हैं जल्दी से. फैसल आपने ही बताना है कि एक 70-year-old मेल presented with the femur fracture. ठीक है, the patient fall down in the bathroom and had femur fracture. So you are being asked to evaluate the patient. So what would you like to do and how will you plan anesthesia? Would you like to have GA or spinal, or what other problems you will face in anesthetizing this patient? Sir, first I will evaluate the patient, taking a history regarding his comorbidities, like hypertension, diabetes, ischemic heart disease, and ischemic heart disease. And if there is any rule out any comorbidities, then I will check the vitals, if it's stable or not. Then I will discuss with surgeon and what they have their plan to proceed right now, or they want to shift to back to the ward. Or then I want to suggest, check there if there is any investigation there. In investigation, I want to check CBC and LFTs, ECG, X-ray, and lipid profile. LFTs you will do without any reason? Sir, if there is any regarding. So did you say? Did you say? LFTs are baseline. Okay. Baseline. Okay, baseline. Baseline. Never use this word baseline. Okay. And tell me one thing. Would you like to discuss with the surgeon what approach he is wanting to do? What sort of fracture it is? Yes, sir. I want to discuss with the surgeon and which position he want to proceed, and which level he need for surgery, and then I will decide. Okay. What other problems you will face? Is there anything which you are worried about? Sir, this is a big bone femur fracture. There is a most of the chances there is a fat embolism, and more bleeding because there is no application of tourniquet. The most chance of bleeding, massive bleeding is there. And yes, sir. Or if there is patient will be pain free, there will be no concern related to pain. Yes, sir. First, I will also talk about is there if they didn't give any painkiller, then I will advise them pain relief. Okay, would you like to give GA or spinal? Sir, if in this condition, first I want to discuss with surgeon regarding the level of and position of the patient. Then in this surgery, most benefit and concern is regional spinal anesthesia. Most. You are just like promoting someone, just like you are promoting for elections. Okay, now I will just prove you in few seconds. Is there any problem related to positioning? Is there any problems related to anticoagulants, or there are more incidents of patient having any arrhythmias, or patient taking any medications like warfarin, as you told that this is an old age patient? And I was just about to maybe I was thinking that you will say, did you evaluate in your start whether there was some medical problem which resulted in fall of the patient? Did you say any word about it? No, sir. Okay. I want to know. So maybe the scenario with the examiner was
that the patient had a CVA, patient became unconscious, fall down in the bathroom and had a fracture. Patient was a case of Addison's crisis, or patient had myxedema coma and patient fall down, or patient had MI and patient fall down and had a fracture of femur. So you have to use this word. I have to evaluate. Also, sir, after fall, we have to see for cervical spine and head injury. Did you say? Sign. Did you say anything sir. related to the fall? In the exam, that's a problem of the failure, my dear brothers and sisters, because you are not finding these things in the book. Okay? हाँ जी, अब तबीयत साफ हो रही है. अब मॉर्गन मेरे मैं थोड़ा सा I'm really frustrated and I'm really sorry to say that हुन चुप हो फिर मॉर्गन नु. ये आंसर्स आपको मॉर्गन में मिलते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों. आपका क्या ख्याल है कि मुझे कोई नून लीग की मरियम औरंगजेब की तरह मॉर्गन के बारे में बोलने का शौक है? मैं इस मनहूस किताब की तकलीफ से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के पीछे लगा रहता हूँ. सारा साल मैं बांसुरी बजाता हूँ, सारा साल आप लोगों के पास टाइम नहीं होता. अब आप लोगों ने में से किसी ने सुना ही नहीं है. अब मुझे हमाद के कान खींचने के दिल कर रहे हैं. मेरे से 6 इंच ज्यादा लंबा हमाद है और इसको इरास नहीं आता. मैं लियाकत साहब को फोन करके बताऊं हमाद कि हमाद को इरास नहीं आता? लियाकत साहब की रूह तड़प जाएगी. ठीक है, तो भाई अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है. प्रैक्टिस कर लो, 4-5 दिन रह गए हैं. ये किताबों का फायदा नहीं है, सिर्फ बोलो. और बोलने में भी देखो कि वहां पर क्या, आप देखो जरा आप रिलैक्स हो गए. ये तो मैंने मजाकन आप लोगों को थोड़ा सा हंसी मजाक में डांट भी दिया, तो प्लीज मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा. देखिए अब आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे, ओल्ड एज का पेशेंट है जिसका फ्रैक्चर फीमर हो गया, आप पेन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? पेशेंट को पेन नहीं होगी, वो बेचारा बुजुर्ग को पेन नहीं होगी. आप पेन को, मैं जबरदस्ती आपसे कहलवा रहा हूँ कि उसकी पेन भी होगी. और ये नहीं बोलना होता कि पेशेंट को अगर मिला है या नहीं, आपने बोलना है कि इस पेशेंट में मेरे कंसर्न्स क्या हैं. ओल्ड एज एंड इट्स कॉमोर्बिडिटीज एंड प्रॉब्लम्स, नंबर 1 ये आंसर होना चाहिए इस तरह. पेशेंट विल हैव सीवियर पेन even during positioning, whatever anesthesia I plan, patient positioning with a will be a big problem. ठीक है, ये 2 बातें हो गई. फिर इसके अंदर लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के अंदर 1 to 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो चुका होता है, इवन अगर क्लोज्ड वुंड है. 1 to 1.5 लीटर, ठीक है, चलो 1 लीटर भी आप लगा ले अगर, ठीक है, तो इट मे बी सिग्निफिकेंट. फिर उसके बाद ये पेशेंट के अंदर आपने अभी बताया कि इस पेशेंट के अंदर फैट एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के ज्यादा चांसेस होंगे. आपने ये देखना है कि ये हो सकता है ये पेशेंट बेड रिडन हो, ठीक है, तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे. और आफ्टर सर्जरी भी ये बेड रिडन रहेगा. तो दिस पेशेंट इज हाई रिस्क फॉर एम्बोलिज्म. ये आपने 4-5 जुमले बोल देने, ठीक, तो आपका वाइवा यही पास हो गए आप इन्हीं 4-5 बातों पे. पहला जो किसी भी लड़ाई में ना जो पहला मुक्का होता है वो ही डिसाइड कर देता है. एटॉमिक वॉर में जिसने पहले एटम बम गिरा दिया, बाद में चाहे जो मर्जी करता रहे बंदा, जिसने पहले एटम बम गिरा दिया, तो आप वाइवे में अगर आपको सिनेरियो मिला और आपने 5-6 ये चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? ये चीजें इस वक्त पता चलेंगी कि जब आप मेरी इस फरियाद को सुन लेंगे कि आपको वहां पे एल्डरली पेशेंट मिल गया है, तो एल्डरली से रिलेटेड चीजों को अपने दिमाग में फौरी तौर पर रिवाइज कर लें कि एल्डरली पेशेंट आएगा तो मैंने ये बोलना है. ठीक है, फ्रैक्चर के अंदर एम्बोलिज्म, बोन सीमेंट सिंड्रोम हो सकता है इस पेशेंट के अंदर बोन सीमेंट भी यूज करें दरमियान में वो, ठीक है, तो उसकी अगर वो पूरे का पूरा नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, उसके अंदर उसकी प्रोस्थेसिस भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. बाकी बातें तो बात की हैं. बाकी तो देखिए आपका आंसर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लेके जाते हैं. अगर आप शुरू में ही फंस गए हैं और आप जैसे आप लोग हिस्ट्री एग्जामिनेशन में ही फंस जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में ही फंस जाते हैं. अब आप मुझे बताओ, लिवर फंक्शन विदाउट एनी रीजन बोलना है आपने? लिवर फंक्शन की कहाँ से जिक्र आ गया मुझे बताएं? और एक पेशेंट का फ्रैक्चर फीमर हुआ है, आप उसका लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे? आपके पास टाइम होगा लिवर फंक्शन कराने में? फ्लोटिंग प्रोफाइल वगैरह ये टेस्ट वगैरह नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप उस पे ये बोलेंगे. ये जुमला इसके लिए वाइवे के मैं ये बता रहा हूँ. I will evaluate the patient on the basis of history, examination and investigation with reference to airway management, with reference to performance of regional anesthesia. If anything significant, I will not do it. ये इस जुमले में आपका आंसर मुकम्मल. उन्होंने आपको एग्जामिनर को सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि क्या ये गैर देखे हुए लगा तो नहीं देगा. ठीक है, और आप उसमें देखेंगे सर्जन के साथ डिस्कशन का मकसद में बताने की क्या है कि आप सर्जन क्या उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं
ठीक है, पोजीशन तो ये लैटरल पोजीशन में ही होता है यूजुअली, ठीक है ना। तो फिर भी उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि कितनी हिस्ट्री गुजर चुकी, फॉल कैसे हुआ था, कोई और एसोसिएटेड इंजरीज तो नहीं थी, ये बातें आप बता देंगे ना। या आप ज़हन में रखें कि जब ओल्ड एज का ये लोगों ने ना, गोरों ने इस पे अपनी किताबें लिख दी हैं, गाइडलाइंस बना दी हैं, फीमर फ्रैक्चर इन ओल्ड एज पेशेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन होगा, यही क्वेश्चन होगा अगर मैं फीमर फ्रैक्चर की जगह लगा दूं TURP। जीशान अब बताओ आप, यही 70 ईयर ओल्ड का बंदा है, TURP है, और ये करेक्ट करेगी सिद्रा, क्योंकि कल सिद्रा को मैंने ये पढ़ाया था। जीशान आंसर दो, सिद्रा करेक्ट करेगी। Okay. As our patient is 70 years old, we have an elderly patient. Okay, our concerns will be, number one, we'll evaluate our patient on the basis of history evaluation, history examination, and relevant investigation. We'll be looking for any kind of comorbids, whether those he's having any kind of the disease for which he might be having some kind of medications, is the disease controlled, and any kind of end organ damage. Then we have concerns related to बस देखो ना, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी ना, तो तुमने मेरी बेइज्जती करवानी है जरूर। यही तो मसला होता है ना। ओ भाई, लिथोटमी पोजीशन नहीं होती, रिलैक्स हो जाओ। TURP सिंड्रोम में इन्वेस्टिगेशन में आप एक बोल दें भाई कि ये पेशेंट का TURP होना है, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बाकी चीजों के अलावा किस चीज पे फोकस होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स पे, बिल्कुल, ठीक है। और ये पेशेंट में ब्लीडिंग हो सकती है, तो पेशेंट की हीमोग्लोबिन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस पहले भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि उसको पहले ही इन्फेक्शन हुआ हो, तो और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इवन ये CBC के में आप बोल दें कि हीमोग्लोबिन और इन्फेक्शन, क्योंकि ये पेशेंट अगर बहुत ज्यादा इसको सेप्सिस हुआ है, तो आप कहेंगे कि पहले इट इज बेटर टू ट्रीट इन्फेक्शन। यस सर, ठीक है। और TURP में और सर्जन के साथ क्या बात करनी होगी? एक लिथोटमी हो गई, साइज ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, और duration of the surgery, the method of the surgery, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। इन पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोनेफ्रोटिक होते हैं नहीं अक्सर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनमें ऑब्स्ट्रक्ट, ये जुमला बोल दे, you have to rule out obstructive uropathy, infections and baseline electrolyte imbalance। पहले ही उसका आपने चेक ही नहीं किया, उसका पहले ही था सोडियम 130, और आपने उसको पकड़ के करा दिया, उसका 80 ग्राम का उसका प्रोस्टेट है या 60 ग्राम का, और सर्जन अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड ही इज टेकिंग मोर देन 45 to 60 मिनट्स, ठीक है। तो उसको नहीं भी होना तो उसको हो जाएगा, ठीक है। TURP टाइप ऑफ जो सर्जिकल टेक्निक है वो भी बाइपोलर, यूनिपोलर, लेजर सर्जरी। एग्जैक्टली। देन पोजीशनिंग प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स में, इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होती हैं, बोन्स फ्रेजाइल होती हैं, जॉइंट्स फ्रेजाइल होते हैं, ड्यूरिंग मैनूवरिंग पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर ये पेशेंट अगर कोमॉर्बिड्स हो, इनमें स्पाइनल, आपके दिमाग में जब उन्होंने आपको बोला ना ओल्ड एज, तो आप ओल्ड एज की प्रॉब्लम आ गई, लिथोटमी की प्रॉब्लम आ गई, TURP की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और स्पाइनल में इनमें कोएगुलोपैथी देखनी है, क्योंकि किसी तरह की ये एंटीकोएगुलेंट्स पे हो सकते हैं पेशेंट्स। और अगर GA करना है तो GA में हमारे एयरवे कंसर्न्स होंगे, जिसमें डिफिकल्ट बैक मास वेंटिलेशन है, डिफिकल्ट इंटुबेशन है, डेंटुलस पेशेंट्स होते हैं, उनकी नेक मूवमेंट मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, TM जॉइंट मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, and then FRC decreased, FRC is approaching the देखो closing मैं आपको बताऊं जीशान, अभी आपने जो जुमले का मैंने आपको बताया ना, फायदा क्या होगा कि आप लोगों का टाइम नहीं जाया होगा। मिसाल के तौर पे वो आपसे नहीं पूछना चाह रहे कि एल्डरली की क्या कंसर्न है, तो वो जब आपने इतना जुमला बोल दिया ना कि द कंसर्न्स विल बी because of physiological, pharmacological, anatomical changes, as well as chances of more comorbidities in this age group, ठीक है। So I will be evaluating on the basis of history examination and relevant investigation। अगर ये जुमला आपने बोल दिया, आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि मुझे एल्डरली आता है, अब उसमें से वो जो पूछना चाहेगा वो आप बता दे। जो पूछना चाहेगा, तो आपको डायबिटीज का भी पता है, आपको हाइपरटेंशन का भी। शुरू में जब आप लोग ये एमलेसली बोलना शुरू करते हैं, उसने वाइवा लेना है आपसे TURP का, आप पकड़ के पहुंच गए डायबिटीज के, उसका कंट्रोल कैसा है, उसका ड्यूरेशन कितना, आप जाया कर रहे हैं अपना टाइम, आप एग्जामिनर के को खुजली कर रहे हैं बिला वजह,
ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और आपने अभी लेजर बोला है, लेजर खुदा की कसम उस वक्त तक ना बोलना जब आखिर में जब आपको पता लग जाए कि आप पास हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये शायद पता ही ना हो। ठीक है, यस सर। वो अभी आप कुछ नहीं बता रहे हो और अभी आप लेजर बता रहे हो, तो वो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए देखो अपने हथियारों को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, तो आपने बता देना है कि ये इसके अंदर जो रेलिवेंट आंसर बनता है वो बनता है कि फैक्टर्स जो कि अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, तो वो अपने अवॉइड करने हैं। उसमें एक ड्यूरेशन है, हाइट है, और आप ऐसा इनर्ट फ्लूइड यूज करेंगे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आई होप सर के मैंने जी सर जो वो आपने जो फीमेल का पूछ रहे थे कि उसको किस तरह वो आंसर करेंगे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी जो मैनेज मतलब कंसर्न है कि रीजनल लगाना है या जीएम में, उसको किस तरह आंसर करेंगे? जरा फीमेल का आपने स्ट्रक्चर आप आपने बोल दिया बेस्ट है। भाई आप क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे की सपोर्ट कर रहे हो? आपको ये कहने वही की पूछ क्या रहा हूँ जरूरत है? आप उनको ये कहें कि any this patient can receive general anesthesia or epidural and spinal, and because of the age group related thing there are problems in both GA and spinal or epidural, but spinal is relatively safer because patient will be awake, patient will be if there are there is the possible TURP syndrome, patient will be easier to be picked. That's it. ये 2-3 बातें आपने बतानी है। स्ट्रेस रिस्पांस को आपने ब्लंट कर दिया। जी स्पाइनल के अगेंस्ट वाली बातें भी बता देता हूँ। अगर आपको पेशेंट को रिस्क है कि पेशेंट इंपेंडिंग सेप्सिस में जा सकता है या उसका पहले ही ऑब्स्ट्रक्शन थी, ऐसे भी पेशेंट होते हैं TURP के जिनको सुप्राप्यूबिक कैथेटर डला हुआ होता है। देखें आपने कभी इस तरह के TURP के पेशेंट? यस ठीक है ना, तो अब आपका भूल गए, अब आपको याददाश्त वापस आ रही है। जब आप देखोगे सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल बात को इम्प्लाई करना है। तो ये देयर विल बी डिफरेंस इन कैटेगरीज। तो एडवांटेज इसका ये है। दूसरी एक और बात ये कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपने बहुत हाई लेवल ऑफ स्पाइनल दे दिया है, इसमें कहाँ तक का लेवल चाहिए होता है फैसल? सर TURP में T10 तक चाहिए होता है। क्यों T10 तक चाहिए होता है? सर्जरी तो प्रोस्टेट में हो रही होती है, तो T10 तक का लेवल क्यों चाहिए होता है? सर वो जब ब्लैडर मैन वो डिसेंड वेरी करते हैं ना गुड, उसका लेवल वहाँ। ठीक है। अगर आपने उसका पहुंचा दिया है ऊपर तक, तो अगर ब्लैडर की परफोरेशन हो गई है, कॉम्प्लिकेशन होती है ना ब्लैडर की परफोरेशन, तो ब्लैडर परफोरेशन आपने यू डोंट हैव टू लेट द ब्लॉक गो हायर देन T10। इट इज बेटर नॉट टू गिव टू मच डोज। ठीक है, क्योंकि अगर वो ब्लैडर परफोरेट का अगर कर गया है और मिजेंट्री उसकी इन्वॉल्व हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका ब्लॉक पता लगा, आपने T6 तक पहुंचा दिया है, तो आपको वो उसकी पेन का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स में एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ब्लैडर परफोरेशन है, और बाकी जो सारी चीजें जो से रिलेटेड होती हैं, कोई भी इस किस्म की जो सर्जरी होगी उसके अंदर ये बातें आपकी कॉमन होंगी। इसके अंदर प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक आपने जरूर देनी है, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर सेप्सिस के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लिथोटमी, अच्छा मिसाल के तौर पे लिथोटमी का भी बताने की जरूरत नहीं है, आप ये बोल दें सिर्फ कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लिथोटमी पोजीशन दैट में बी रिजल्टिंग फ्रॉम एनी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और नर्व इंजरी, यहाँ तक आप खामोश हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि एग्जामिनर की में क्या है। लेकिन अगर आपने इस सवाल के अंदर आपने ओल्ड एज के बारे में बता दिया, लिथोटमी के बारे में बता दिया, TURP से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपने बता दिया। हाँ, अक्सर औकात मेरे से ये सवाल पूछा गया था, फ्लूइड उसके अंदर कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो, यूज करते हैं और ग्लाइसिन। तो आपसे वो ग्लाइसिन टॉक्सिसिटी के बारे में पूछ सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी के जो क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे। ग्लाइसिन टॉक्सिसिटी क्या होती है, ब्लाइंडनेस होती है, क्या लेवल्स होते हैं, तो ये आपको उसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे इसके ऊपर वो आपको फेल नहीं करेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि ये पहला क्वेश्चन हो सकता है। ये टेबल वाले में मेरे से पहला सवाल ही ये था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज, अच्छा चले, मेरे ख्याल अभी आप लोग सांस ले लें और प्लीज इस तरह प्रैक्टिस करें। आप लोग आपस में भी प्रैक्टिस करें तो इसी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो कोई चीज समझ ना आए तो पूछे, फिर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं रात को दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी देखें, अभी समरी में बता रहा हूँ, मैंने आपसे गायनी ऑप्स का एक सिनेरियो पूछा, एक मैंने आपसे पीडियाट्रिक का सिनेरियो पूछा, एक मैंने आपसे एल्डरली का सिनेरियो पूछा, एक मैंने आपसे कहने के रिसेंट एडवांसेस से रिलेटेड वो इरास नॉट रिसेंट एडवांटेज मगर आपने वो पूछ लिया, एक मैंने आपसे बेसिक साइंसेस का सवाल पूछा।
ठीक है, तो ये 5-6 सवाल मैंने आपसे पूछे। तो बाकी ये है कि देखें, इसी तरह ज़हन में रखें कि 20 सवाल आपसे पूछे जाने हैं। 20 सवाल में से तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो होंगे आपके सिनेरियो बेस्ड। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप अपने दिमाग के अंदर, बोलने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट रिलेटेड, जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने ये बोलें पेशेंट रिलेटेड, सर्जरी रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड। ये आप उनको 5वीं जमात का बच्चे की तरह का आंसर देंगे अगर आप ये बोलेंगे। आप सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ये रिवाइज करें और ये आपकी हेल्प कर रही होगी चीज। इसी तरीके से प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको लोग कहेंगे कि बोलो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना बोलोगे तो हराम हो जाएगा, लेकिन अगर बोलने के बाद आगे कुछ नहीं बोला तो फायदा। और अगर आपने प्री ऑपरेटिव का नाम नहीं बोला लेकिन जो आप करना चाहते हैं प्री ऑपरेटिवली वो सारी चीजें बता दी, तो फिर प्री ऑपरेटिव का लफ्ज बोलने का फायदा भी होगा, अदरवाइज फायदा कोई नहीं है। मैंने सुना है, देखा है बहुत सारे लोगों को, अब तो इतने लोगों को फेस करता हूँ, लोग ये बोल देंगे प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट, अब दरमियान में उनको खुद भी नहीं पता होगा कि हमने प्री ऑपरेटिव में क्या बोलना है, इंट्रा ऑपरेटिव कहीं दरमियान में इधर उधर घूम जाएंगे, तो उस वक्त फिर बोलने का क्या फायदा है। ज्यादा बेहतर ये है ना कि आप ये बोल दें कि भाई ये इसके अंदर देखो 3 से 4 मिनट के अंदर आपने बोलना है, 1 मिनट उसने आपसे सवाल पूछना है। आप खुद ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो कि कितनी बातें आप बोलोगे, लंबी कहानी सुनाने का तो टाइम ही नहीं है। ठीक है सर। जी जी सर दो चीजें थी। हाँ। एक तो सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जो अभी ये 10-12 दिन रह गए हैं, इसमें जो इवनिंग सेशन है उसमें अगर सिस्टम वाइज हमारे लिए चल पड़े, देखो मैंने पहले एक भी सिस्टम कोशिश डेली की का थी। हो जाए। नहीं देखो मेरी बात सर वही सुनो। वही मैं इनसे भी बात करने लगा हूँ सर। मैं दूसरी मेरी रिक्वेस्ट अपने सारे कोलीग से है, क्योंकि जब मैंने सर जिशान को रिक्वेस्ट की थी कि एमसीपीएस वालों के लिए सेशंस रख लें, तो मैंने 6 लोगों से खुद मैसेज करके, कॉल करके, पूछ के तो शुरू किया था, लेकिन उनमें से सिर्फ हम 2 आ रहे हैं। बाकी लोग जो 4 थे जिन्होंने ओके भी किया था वो नहीं आ रहे। कुछ लोग तो वैसे रोक सिद्रा से बात नहीं हुई थी वो आ रही हैं, एक आध और बंदा है जो वैसे आ रहे हैं, लेकिन 6 बंदों से मेरी बात हुई थी और वो भी सारे नहीं आ रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि लिटरली ये जो सेशंस हैं, जिस तरह सर जिशान अगर डांटते भी हैं, देखो मैं रोजाना प्रॉब्लम करता हूँ, मैं रोजाना डांट भी खाता हूँ, इसलिए कि वो चीज फिर मुझे नहीं भूलती जिस चीज पे डांट पड़ चुकी होती है। और दूसरा वहां पर नर्व्स को काबू पाना, कि आपने एक दफा जब गलती कर दी, एग्जामिनर चिढ़ गया आपसे, और जब वो आगे से ऊंचा बोल देती हैं, फिर अपने आप को संभलने की प्रैक्टिस होनी संभलना चाहिए कि कैसे आप करते संभल हैं। सको दोबारा, यस क्योंकि फिर एग्जैक्टली। नहीं संभला जाता उधर। वो फिर आपके मतलब एक एग्जामिनर के पास आपके 5 सवाल होने हैं, वो पहला सवाल आपका गलत हुआ, फिर आपकी वो लाइन लग जाती है एंड यूर गॉन। इन दोनों चीजों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस जिस तरह सर करवाते हैं, लिटरली आपको ये किसी और सेशन में नहीं मिलती। आई एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट। चलें ठीक है। नहीं जीशान, वो देखो एक हम लोगों ने न्यूरो किया था, ठीक है, न्यूरो के बारे में एक सिनेरियो मैंने वो जबानी, आप देखो वो इस तरह भी करता हूं मैं, ये भी कर लेता हूं, लेकिन देखो आज तो मेरे पास टाइम है। आज सर थोड़ा आज सा ना ये लाइव वाला जो शाम वाला सेशन है ना सर, क्योंकि लाइव में जब एकदम क्वेश्चन आता है और एकदम उसका आंसर करना चलो होता है ना, विद इन चलो सेकंड्स बहरहाल उसका बहरहाल आंसर ये कि देखो करना मेरी है। बात सुनो, अभी आज रात को, कल सुबह और कल रात मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट ये 3 दफा तो आप लोगों को खंगाल देना। तो जो आप लोग, आपके ख्याल से देखो यही सवाल है बेसिक साइंसेज का। मैं आपको अगर मैं एक आउटलुक बताऊं ना, ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप्स है ना, या डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, पीडियाट्रिक, न्यूनेट, एल्डरली, प्रेग्नेंट, ओबीज, स्मोकर, एल्कोहलिक, ओपियोइड एडिक्ट, इनमें से ये जो 6-7 है ना, ये हो सकता है सारे ही पूछे जाए, नहीं तो इनमें से 3-4 तो जरूर पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रेग्नेंट पेशेंट वाइवे में ना आए, कोई एल्डरली पेशेंट वाइवे में ना आए, कोई ओबीस पेशेंट वाइवे में ना आए, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस को आप पहले से प्रिपेयर कर लें। इसी तरीके से इसी लिस्ट में आगे आ गया डायबिटिक और हाइपरटेंसिव, तो आपको 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 50 सेकंड में इसको कैसे बोलना है ये प्रैक्टिस करें। सबसे पहले तो यही प्रैक्टिस है। उसके बाद बेसिक साइंसेज में एक आप पोर्शन ले लें एनेस्थीसिया से रिलेटेड, और एक आप जनरल इक्विपमेंट्स कर लें, और हर का आपको यही सवाल आना चाहिए। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SpO2, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंटाइडल CO2, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंट्राआर्टियल ब्लड प्रेशर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्डिक आउटपुट मॉनिटर्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ये जो ह्यूमिडिफिकेशन कैसे यूज करते हैं, स्कैवेंजिंग कैसे यूज करते हैं, सक्शनिंग कैसे यूज करते हैं, वेपराइजर का क्या रोल होता है। तो आपको पहला का सवाल आपसे ये पूछेंगे वो क्या होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंट चीजें होती हैं, क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग क्या होती है। तो आप ये याद कर लें। डायथर्मी पूछ सकते हैं, सक्शनिंग पूछ सकते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन पूछ सकते हैं। इनमें से कोई एक सवाल आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में एक सवाल इनमें से जरूर पूछा जाता है। इसी के अंदर आप TBR TCI भी कर ले, ठीक है।
और इक्विपमेंट कह लें या एटिपिकल चीजें कर लें, उनमें पेस मेकर है, MRI है, ये इनमें से आप लिस्ट बना लें, इनमें से 1 या 2 जरूर आते हैं, तो आप पहले से याद कर लें। आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर नोरा, और स्पेशली उसके अंदर MRI, ठीक है। MRI सूट में एंडोस्कोपी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आपने को ने, क्योंकि मेजोरिटी लोगों ने कभी एंडोस्कोपी करवाई नहीं होती, तो वो फंस जाते हैं। जिन्होंने नहीं मैंने मेरे से ERCP पूछा था, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ERCP क्या होती है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था क्योंकि कभी करवाई ही नहीं थी, और वो एग्जाम में तबीयत साफ हो गई थी। तो ERCP जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। कार्डियो वर्जन, वो आपसे यही सवाल पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको कार्डियो वर्जन करना है, यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रोवाइड एनेस्थीसिया केयर फॉर कार्डियो वर्जन। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, अब हर इनके अंदर एक एटिपिकल चीज आती है, फिर उसके बाद 20-25 मेडिकल डिजीजेज हैं, उनकी आप लिस्ट बना लें। वो 2-3 हर सिस्टम में से निकल आएंगी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट फेलियर है, COPD है, एस्थमा है, एपिलेप्सी है, उसके बाद पार्किंसंस डिजीज है, उसके बाद आप ये थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज है, पोरफायरिया है, और इसी तरह को 20-25 डिजीजेस की आप लिस्ट बना लें। और आप उनका भी यही पहला क्वेश्चन है कि वो डिजीज होती क्या है, दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर चेंजेस क्या होती हैं, तीसरी चीज उसकी एनेस्थीसिया से क्या रेलेवेंस होती है, चौथी चीज उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और उस ट्रीटमेंट का कोई एनेस्थीसिया पे इफेक्ट तो नहीं होता। तो ये आप इस तरीके से प्रिपेयर करें, मेरे ख्याल 2-3 दिन तो करें ना, उसके बाद ये 2 दिन तो करते हैं ना, तो उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।